Good evening, everyone. Good evening, everyone. गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का आज की क्लास में जो है स्वागत है। आज की जो क्लास है हाउ टू मेक सीवी। और आज जो है हमारे रिसोर्स पर्सन है मिस्टर विक्की गौतम, जो कि है अकाउंटेंट। आप सभी ओम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही है। ओम जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओम जी। राधा। ओम जी, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। आप ठीक है? राधा, ओवर टू यू। राधा नहीं, मेरे को बोलना है, फरहद को। अच्छा, आपको बोलना है? फरहद हाँ जी को बोलना है वोट ऑफ थैंक्स आज। नहीं, इंट्रोडक्शन के लिए। हाँ, हाँ, इंट्रोडक्शन के लिए फरहद जी को बोलना है आपको। अच्छा, फरहद, ओवर टू यू। प्लीज हाँ, वेलकम। थैंक यू ओम ओवर जी। टू यू। वेलकम एंड इंट्रोड्यूस मिस्टर विक्की एंड संदीप चावला सर। Good evening, everyone. I'm Farhat on the behalf of Saksham Rozgar Society. Today, I'm going to introduce our today's resource person, Mr. Vicky Gautam. Vicky Gautam is a commerce graduate with a BCom honors degree from Motilal Nehru College, University of Delhi. Alongside his graduation, he completed an internship at VGHSR and Associates LLP, a chartered accountancy firm, where he later worked as an auditor. His professional journey includes working as an accountant at Samsung, then handling financial reporting in the financial department of an engineering and construction company. Currently, he is working as a senior accountant at Castle India, a Germany based organization. Beyond his corporate experience, he has been actively involved in social work, contributing to NGOs such as Saksham Bharati, Magic Bus, and Saksham Rozgar Society. Throughout his journey, he has been mentored and guided by Jyotika Kalra, the president of Saksham Rozgar Society. Their association dates back to his school days in the 6th class, and she has continuously supported and motivated him in both his personal and professional life. Currently, Vicky is pursuing a law degree with the goal of becoming a lawyer, further expanding his expertise uh, in financial, auditing, and legal affairs. And now I'm going to introduce our today's leading person, Mr. Sandeep Chawla. Mr. Sandeep Chawla is a seasoned professional with 36 plus years of experience in the pharmaceutical industry, specializing in sales, marketing, and training. He has led training function across India and Nepal for over 14 years, including his role as training manager at Sanofi head office in Mumbai. He has conducted 100 plus workshops, trained over 1000 employees, and designed program on leadership, communication, professional and development certified by Dale Carnegie
Franklin Covey and PRISM. He now works as a freelance learning and development consultant, delivering impactful in person and virtual training. Thank you so much. Over to you, Omji Thank or you, Vicky ji. Farad. Thank you so much for your wonderful introduction. I request our resource person, Mr. Vicky Gautam, to kindly begin the session. Over to you, Mr. Vicky. Thank Mr. you so Vicky, much, welcome. thank you so much, Om ji, and thank you so much, Faraj ji, for a warm regards and warm greeting for me. And first of all, thank you so much, Aksham Rozgar Society, for giving me this opportunity to take a class. And good evening, everyone. This is Vicky Gautam. And कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं विक्की गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ सक्षम रोजगार सोसाइटी में। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि जो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है हाउ टू मेक करिकुलम विदाए या फिर रिज्यूम। तो सीवी के ऊपर आज की हमारी जो क्लास होगी और रिज्यूम के ऊपर जो हमारी क्लास होगी। तो आप जैसा सभी जानते हैं कि जो सक्षम रोजगार सोसाइटी है वो इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला रही है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको रिज्यूम और सीवी बनाने की भी यहाँ पे स्किल प्रोवाइड करते हैं। कि जरूरी नहीं है कि किसी की स्किल हो जिसके अंदर टैलेंट हो, जिसके अंदर एक कम्युनिकेशन की स्किल हो, टैलेंट हो और एक्सपीरियंस हो, बट उन चीज़ों को एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में जो हम लिखते हैं जब भी कभी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिज्यूम या फिर सीवी के थ्रू ही करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हुए मैं एक आप छोटी सी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, एक सोनू नाम का लड़का होता है, एक मोनू नाम का लड़का होता है। दोनों ही एक सिटी में रह रहे होते हैं और दोनों ही खूब टैलेंटेड होते हैं। दोनों के मार्क्स भी आसपास में आते हैं, दोनों ही 90% के आसपास दोनों मार्क्स अचीव करते हैं अपने 12th बोर्ड में। ठीक है, क्या होता है, देखो दोनों के पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होती है, दोनों की अच्छी कम्युनिकेशन होती है, दोनों ने अच्छे अच्छे अपने कोर्स कर रखे होते हैं, दोनों के पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होता है, दोनों ही मतलब हर चीज में दोनों अव्वल लेवल पे होते हैं। दे बोथ हैव अ गुड नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड आप मतलब हर चीज में वो दोनों बराबर होते हैं। होता क्या है, जब जब सोनू और मोनू जब भी इंटरव्यू देने जाते थे तो सोनू क्या होता था, 2-3 इंटरव्यू के अंदर सोनू रिजेक्ट हो गया और मोनू हर जगह 2-3 बार वो पास हो गया। होता क्या था, देखो दोनों में टैलेंट सेम है। ऐसा नहीं कि सोनू को कम आता है और मोनू को ज्यादा आता है, ऐसा कहीं भी नहीं था। ना सोनू को ज्यादा ना मोनू को कम, ऐसा कुछ नहीं था, दोनों ही बराबर लेवल पे थे। लेकिन हुआ क्या था कि जो सोनू रिज्यूम बनाया करता था उसके रिज्यूम में बहुत सारी मिस्टेक्स हुआ करती थी। चाहे वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, चाहे वो पैसेज के रूप में लिखने वाली मिस्टेक्स हो, चाहे वो रिज्यूम को टेक्स्ट का जो साइज होता है वो किसी जगह वो कैपिटल लेटर यूज कर रहा है, कभी वो स्मॉल लेटर को यूज कर रहा है रिज्यूम के अंदर। प्रूफ रीडिंग होता है, बताऊंगा अभी आपको क्लास में, प्रूफ रीडिंग नहीं करता था वो सोनू जो था। लेकिन मोनू जो था वो क्या करता था, जब भी अपना रिज्यूम बनाता था तो वो इन सभी चीजों का ध्यान रखता था कि रिज्यूम में मुझे क्या क्या चीजें डालनी है जिससे इंटरव्यूअर का जो अट्रैक्शन है, जो इंटरव्यूअर का जो माइंडसेट है वो एक बार में मेरी तरफ आ जाए, सोनू की तरफ ना जाए। तो उस तरीके से क्या होता था, सोनू हमेशा पीछे रह जाता था लेकिन मोनू जो था वो हमेशा आगे बढ़ जाता था। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उसके ने अपनी लाइफ जो स्टोरी थी, जो उसने अपने लाइफ में पढ़ाई की थी, जो उसने स्किल लिए थे, हासिल किए थे, उनको उसको अपनी एक स्टोरी को एक कहानी के रूप में रिज्यूम में जो रिप्रेजेंट करने की जो स्किल थी ना वो बेहद अच्छी थी। उसको जो रिज्यूम बनाने का जो तरीका था वो बेहद अच्छा था। तो इस तरीके से रिज्यूम और आपका सीवी किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में, आपके करियर में, वो आपको पता लगेगा। और छोटी छोटी चीजें होती है रिज्यूम के अंदर, ऐसा नहीं है कि रिज्यूम बनाना, रिज्यूम में बहुत चीजें नहीं होती। अभी आप आगे देखोगे, रिज्यूम बनाते वक्त आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जब भी आप किसी रिज्यूम को बनाते हो, कभी भी आप बड़ी कंपनी में, किसी भी एमएनसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो जो गेट कीपर बोलते हैं जिसको, जो गेट कीपर होता है वो आपका रिज्यूम ही होता है। मान लो 100 रिज्यूम आपके पास कंपनी के पास आए हैं, तो 100 रिज्यूम में से आप ये मान के चलो 50 रिज्यूम तो वहीं पे वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, सिर्फ रिज्यूम की रिप्रेजेंटेशन देख के कि उसकी रिज्यूम की रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी,
टेक्स्ट अच्छा यूज नहीं किया था, अनप्रोफेशनल टेक्स्ट यूज किया था, ठीक है ना। कहीं पे वो नॉर्मल टेक्स्ट यूज कर रहा है, आगे जाकर वो इटैलिक में यूज कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो टेक्स्ट का जो टेक्सचर है ना, वो गलत यूज करना, ठीक है। और मिस्टेक्स करना, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई लिखता है, किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की जगह दिल्ली यूनिवर्सिटा लिख दिया, वाई की जगह ए लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी। तो ऐसे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है कभी भी आप बड़ी कंपनी में कहीं पे भी रिज्यूम देते हो। तो रिज्यूम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, ठीक है ना। क्योंकि देखो, रिज्यूम ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। आप कंपनी में नहीं पहुंचे लेकिन आपका रिज्यूम पहले पहुंच जाता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो रिज्यूम हमेशा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी रिज्यूम के ऊपर ही होने वाली है कि हमें रिज्यूम कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू मेक सीवी। फिर आज हम देखेंगे कि सीवी और रिज्यूम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले आप सबको मेरी पीपीटी विजिबल है? हेलो, एम आई ऑडिबल? जी, यस आपका सर। पीपीटी जो सभी को विजिबल है। ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं कि आपके सामने पीपीटी पे ना तीन वर्ड दिख रहे होंगे, CIC। जो पहला सी है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टैक्ट के ऊपर, ठीक है। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? आपको और कंपनी को जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, जो आप मिल रहे हो, उसका जो मोड है वो आपका रिज्यूम है। क्या है वो? आपका रिज्यूम है, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट होता है, पहला कॉन्टैक्ट हमेशा आपका कंपनी से आपका रिज्यूम कराता है, ठीक है ना। आप पर्सनली तो जा नहीं रहे फर्स्ट टाइम पे आपका रिज्यूम जाता है। जब आपका रिज्यूम सेलेक्ट होता है फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिज्यूम और सीवी। दूसरा है इम्पैक्ट। जब भी आप अपना रिज्यूम सबमिट करते हो किसी कंपनी के अंदर, तो उस रिज्यूम का जो इम्पैक्ट होता है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है, कि आपके रिज्यूम का इम्पैक्ट कैसा आता है। जितना बेहद रिज्यूम बनेगा, जितना अच्छा रिज्यूम होगा, जितना जितना क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है ना, जितनी आप शॉर्ट में चीजों को लिखोगे, उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी मैं आपको दो तीन चीजें मेरे पास अभी इसके अंदर ही बताऊंगा लास्ट में, कि रिज्यूम बनाते हो दो तीन चीजें और आपको ध्यान रखनी है दिमाग के अंदर, कि आपको जब भी रिज्यूम बनाओ तो ये चीजें फोकस करना, क्योंकि इंटरव्यूअर इन चीजों को जरूर फोकस करता है। क्योंकि मैं अपनी कंपनी में खुद इंटरव्यूज लेता हूँ, तो मैंने भी डजन इंटरव्यूज ले रखे हैं एम्प्लॉयज के, जो मेरे पास आते हैं। तो मुझे पता होता है, मैं ये मान के चलो मेरे पास 5 इंटरव्यू के लिए लड़के आ रहे हैं मेरी कंपनी में अकाउंट्स के लिए। तो मैं 5 में से ये मान के चलो आप 3 को तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ कि ये 3 नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरा माइंडसेट बन जाता है, क्योंकि ना रिज्यूम अच्छा नहीं होता ना, रिज्यूम बहुत उल्टा पुल्टा बना के आते हैं, तो मुझे हिसाब से पता लग जाता है कि ये बंदा नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बाकी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? दोनों दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है ना, सहमति बनना, ठीक है। देखो आपके नीचे एक टैगलाइन भी दिख रही है, व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द इंडस्ट्री। जब भी आप इंडस्ट्री में जाओगे तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? आपका रिज्यूम ही होता है। इट शुड बी द लास्टिंग इंप्रेशन, और यही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। लास्ट इंप्रेशन मतलब अगर आप सही से नहीं बनाओगे तो अभी स्टार्टिंग में ही छट जाओगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपका गेट कीपर होता है, स्टार्टिंग का स्टेज होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज रिज्यूम, रिज्यूम होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर रिज्यूम की डेफिनेशन के बारे में हम जाने, तो रिज्यूम अ शॉर्ट फोकस्ड डॉक्यूमेंट 1 to 2 pages highlighting your most relevant skills and experience for a specific job used for most industries। इसका सिंपल क्या मतलब है? जो भी आपका रिज्यूम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, शॉर्ट यानी 1 और 2 पेज, मैक्सिमम 1 या 2 पेज में बन जाता है। हाईलाइटिंग और मोस्ट रेलिवेंट स्किल्स, रेलिवेंट स्किल्स का मतलब क्या होता है? यू हैव मोर देन 10 स्किल्स है आपके पास, मान लो 10 से ऊपर आपके पास स्किल है। आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको ग्राफिक का काम आता है, आपको अकाउंट्स का भी काम आता है, होते हैं कई मल्टीटास्क भी होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास कई सारे काम होते हैं, लेकिन रेलेवेंट स्किल का मतलब क्या है? कि जब आप जॉब पे अप्लाई कर रहे हो और उस जॉब के अप्लाई के डिस्क्रिप्शन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मान लो उसने पूछा है कि मेरे को अकाउंट्स में टैली सॉफ्टवेयर आना चाहिए,
या मैं ग्राफिक का अगर कर देख रहा हूँ तो उसके अंदर कोरल ड्रॉ यूज करना आना चाहिए। तो आप हमेशा उस जो स्पेसिफिक जो मेंशन हो रखा है जॉब डिस्क्रिप्शन में, आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए रेलेवेंट स्किल बन गई। तो रिज्यूम जो होता है वो हमेशा रेलेवेंट स्किल के लिए होता है। ठीक है। एंड एक्सपीरियंस फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। स्पेसिफिक जॉब का मतलब क्या होता है? आप एक अलग फील्ड में जा रहे हो, एक स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे हो। ठीक है ना? तो स्पेसिफिक जॉब के लिए आप एक स्पेसिफिक रिज्यूम बनाते हो, यूज फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है। दैट इज कॉल्ड रिज्यूम, क्योंकि शॉर्ट होता है। ज्यादातर लोग शॉर्ट रिज्यूम को ही यूज करते हैं। ठीक है। और अगर दूसरा आप डेफिनेशन देखोगे तो है आ रिज्यूम समराइजिंग योर स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, यूज अ सिंपल प्रोफेशनल फॉर्मेट टू अलाइन विद मॉडर्न ऑनलाइन हायरिंग प्रैक्टिसेस। सेम मीनिंग है बिल्कुल। आपकी स्किल्स को सब समराइज करता है कि आपकी जो भी स्किल है उसको एक समराइज वे में लिखता है, समरे में लिखना पड़ता है आपको। एजुकेशन में वही जैसे आप लिखते हो 10th क्लियर फ्रॉम दिस दिस यूनिवर्सिटी, सॉरी दिस बोर्ड, 12th क्लियर फ्रॉम दिस बोर्ड, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आप रिज्यूम में देखते होगे, इस तरीके से हम डिटेल को मेंशन करते हैं। बात वही एक्सपीरियंस की आ गई। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको अपना एक्सपीरियंस भी रिज्यूम में मेंशन करना होता है कि आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस कंपनी एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है ना? एज अ सेल्स कोऑर्डिनेटर, एज अ डिजाइनर। ठीक है ना? जो भी आपकी पोस्ट है आपको वो अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन करना होता है, जितना भी आपको एक्सपीरियंस है। ठीक है। और हमेशा याद रखो, जब भी आप रिज्यूम बनाओ इट शुड बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है कि आपको बिल्कुल शॉर्ट में और क्रिस्प में रिज्यूम बनाना है, क्रिस्प होना चाहिए। ऐसा नहीं होना आपने पूरी कहानी लिख दी कि भाई साहब मैंने पूरा इस कॉलेज में ये किया, ये किया। हम इस तरीके से नहीं, बिल्कुल इट शुड बी क्रिस्प होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के लिए आपने 12th करी सीबीएसई बोर्ड से, जस्ट यू हैव टू मेंशन ऑन योर रिज्यूम दैट आई हैव कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड इन 2025। आई एम जस्ट टेकिंग एज एग्जाम्पल। इस तरीके से आपको शॉर्ट में लिखना है। अब देखो, आपने 12th क्लियर कर ली, आपने उसमें मेंशन कर दिया। आपने सीबीएसई बोर्ड से करी, आपने वो भी मेंशन कर दिया। आपने 25 में करी, आपने वो भी मेंशन कर दिया। तो आपने अपने इंटरव्यूअर को एक एक छोटी सी लाइन के अंदर आपने 3 चीजें बता दी। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको जो इन्फॉर्मेशन है इट शुड बी शॉर्ट। ठीक है ना? नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज करिकुलम विटाए, सीवी। देखो रिज्यूम के बारे में तो हम सभी ने पढ़ लिया। इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी शॉर्ट, रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है ना? रेलेवेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स के रेलेवेंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, एक प्रोफेशनल लेवल पे होना चाहिए। वो आपने रिज्यूम के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं हम करिकुलम विटाए के बारे में पढ़ने के लिए, दैट इज व्हाट इज सीवी क्या होता है। अगर हम सीवी की बात करें, सीवी अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट। रिज्यूम क्या था? अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट। और सीवी क्या है? अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट। पहला डिफरेंस आपको यही मिल गया। सीवी इज अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट, 2+ पेजेस का होता है ये। और सीवी क्या था, और रिज्यूम क्या था? 1 to 2 पेजेस। और वहीं अगर आपकी सीवी की बात करें, इट इज मोर देन 2 पेजेस, फॉर मोर देन 2 पेजेस, विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर एजुकेशन, वर्क, स्किल्स, रिसर्च एंड अचीवमेंट, यूज्ड मोस्टली फॉर एकेडमिक और स्पेसिफाइड जॉब, स्पेशलाइज्ड जॉब। क्या होता है इसमें? आपकी डेप्थ में डिटेल को जानते हैं वो लोग। जो इंटरव्यूज होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो आपके डेप्थ में डिटेल के लिए जाते हैं। आप सभी ने सुना होगा जो कैट के जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, तो कैट के एग्जाम में जब एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें वो आपके मार्क्स तो देखते देखते हैं, लेकिन वो आपके 10th और 12th के मार्क्स से भी वो आपकी एवरेज लगाते हैं। 50% मार्क्स जो आपका एग्जाम हो गया, 50% मार्क वो आपकी स्किल और आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने मार्क्स आए थे, उसके बाद एग्रीगेट बनता है। तो आपकी हिस्ट्री से देखते हैं, मतलब हिस्ट्री से कंपेयर करते हुए आपकी मार्किंग बनाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो हिस्टोरिकल चीजों को भी चेक करते हैं, मतलब बहुत डिटेल्ड में जाते हैं चीजों को लेके। और वही होता है सीवी। और मोस्टली सीवी आप ये मान के चलो, एग्जाम्पल के लिए जो साइंटिफिक वाले, जो साइंटिस्ट वाले लोग होते हैं ना, जो सब कुछ डाल देते हैं, मैंने ये इंटर्नशिप करी, मैंने ये वर्कशॉप्स करी, मैंने अपने यहाँ पे मैंने ये एडवेंचर किया, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ज्यादातर वो लोग इसी इसको ना एक ट्रेल बना के अपने सीवी के अंदर मेंशन करते हैं, मतलब बहुत लॉन्ग बना के मेंशन करते हैं। वो ज्यादातर सीवी यूज करते हैं। और जो नॉर्मल जो हम लोग जैसे देखते हैं मार्केट में, जो लोग लड़के जो जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लड़कियां इंटरव्यू दे रही हैं जो आजकल, वो सब शॉर्ट होता है। जो आप लोग सब देखते हो वो सब रिज्यूम है, वो सीवी नहीं, वो रिज्यूम होता है।
और की डिफरेंस की अगर आप बात करोगे, आपके नीचे मेंशन है लेंथ। सीवी की जो लेंथ होती है वो 2+ पेजेस की होती है, और जो रिज्यूम की जो लेंथ होती है वो आपकी शॉर्ट होती है, विच इज़ फॉर 1 और 2 पेजेस मैक्सिमम। फोकस जो होता है उसका करियर हिस्ट्री एंड डिटेल में होता है, जो सीवी का होता है वो हिस्ट्री भी जानता है, मतलब डेप्थ से पूछता है कि स्टूडेंट कैसा रहा है पहले। ये नहीं कि अभी कितना क्या हुआ है, नहीं, पहले कैसा था फिर कैसा हुआ, मतलब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते गए इस इंसान के अंदर, कितनी डेवलपमेंट हो रही है इस इंसान के अंदर, वो चीज उस चीजों पे फोकस भी करते हैं, वो बहुत डिटेल्ड में चीजों को चेक करना। रिज्यूम क्या होता है? रेलेवेंट स्किल एंड एक्सपीरियंस, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डालना रिज्यूम के अंदर। पर्पस की बात करोगे आप, एकेडमिक और रिसर्च पोजीशन की बोल रहा है ये। एकेडमिक और रिसर्च पोजीशन मतलब रिसर्च कर रहे हो, मैंने बताया ना अभी साइंटिस्ट वाले टाइप, तो वो जो सीवी यूज करते हैं वो गया एकेडमिक और रिसर्च पोजीशंस के रिगार्डिंग। और बाकी अगर हम बात करें रिज्यूम में, तो वो जनरल जॉब एप्लीकेशंस के ऊपर होता है, जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक होता है। कस्टमाइजेशन की बात करें तो रेयरली टेलेड होता है, मतलब जो सीवी होता है वो बहुत कम चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं करते, उसको मॉडिफाई नहीं करते, क्योंकि जो आप स्टार्टिंग में सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हो तो आपको कुछ कस्टमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। बट जो रिज्यूम होता है वो टेलर टू ईच जॉब होता है, जैसे जितनी जॉब अलग अलग तरीके की इसको मिलती जाएंगी, वो उस जॉब के रिगार्डिंग उस रिज्यूम को क्रिएट करेगा। जिस जॉब में मान लो कोरल ड्रॉ का कोई जॉब आया तो कोरल ड्रॉ के बारे में रिज्यूम ज्यादा फोकस फोकस बनाएगा, ठीक है ना। और कोई सॉफ्टवेयर होगा तो उस सॉफ्ट एडोबी का कोई सॉफ्टवेयर है वो उसके लिए अलग से बनाएगा। ऐसे अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, एक टैली होता है, आपका क्विक बिक्स होता है, बिजी होता है। तो टैली की जॉब आएगी तो आपको पता है आपको सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बट आप टैली की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप टैली के बारे में मैक्सिमम चीजें लिखोगे रिज्यूम के अंदर। तो आपको जो रिज्यूम है वो आपका स्पेसिफिक बन जाएगा फॉर द टैली पर्पज ओनली। तो ये हमेशा क्या होता है, रेलिवेंट चीजों के लिए फोकस्ड होता है रिज्यूम आपका, ठीक है ना। हाँ जी। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट पीपीटी पे। सोर्स ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क, जो इंटरव्यूअर होता है आपका, उसके पास सोर्स कहाँ से आता है क्वेश्चन पूछने का। आप इंटरव्यूअर से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, इंटरव्यू आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है, इंटरव्यूअर को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, ब्लैंक है आपके बारे में, लेकिन उसके हाथ में आपका रिज्यूम है, तो उसको जो भी सोर्स पता लगेगा वो रिज्यूम से ही पूछेगा। जैसे व्हाट, मतलब क्या, आपने लाइफ में क्या किया वो पूछ सकता है, रिगार्डिंग कि आपने यहाँ पे क्या किया, ये चीजें कब करी। फिर दूसरा देखो आ रहा क्यों, मान लो आपने कोई कोर्स 2 महीने में छोड़ दिया, या आपने कोई मतलब आपने अकाउंट्स की फील्ड जाते जाते आपने एनिमेशन में चले गए आप, तो पूछ सकता है कि क्यों गए, तो वहां से क्वेश्चन अराइज हो गया, ठीक है ना। व्हेन, व्हेन मतलब कब, आपने मान लो लिख दिया आई हैव कंप्लीटेड माई ट्वेल्थ फ्रॉम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। अब वो पूछ सकता है भैया कब करी आपने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, तो आपको फिर बताना पड़ेगा मैंने 2024 में करी, 2024 में करी। तो इट शुड बी, कब पूछ सकते हैं वो कि कब किया आपने, ठीक है ना। क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, और विच मतलब कौन सा। मैंने लिखा मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया, उसने बोला कौन सा हार्डवेयर का, मतलब कौन से हार्डवेयर का कोर्स किया आपने, कहाँ से कोर्स किया आपने, कब किया कोर्स आपने। तो जो भी आपके रिज्यूम में मेंशन होगा वो क्वेश्चन वो उसी सोर्स से क्वेश्चन आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर हमेशा, उसके पास और कोई सोर्स होगा नहीं। तो हमेशा रिज्यूम में हमेशा जो आपको आता हो वही लिखो। आपने गलती से कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया या आपको जो चीज़ नहीं आती आपने वो चीज़ लिख दी तो आप फंस जाओगे, तो आप एक अलग ही नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा कि जो इंसान सामने बैठा है वो लायर है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा आप अपनी जो भी ट्रू इन्फॉर्मेशन है वही आप मेंशन करना रिज्यूम के अंदर, क्योंकि देखो रिज्यूम से इंसान पूछ लेता है, ठीक है ना। अब आ रहे हैं हम रिज्यूम राइटिंग के ऊपर कि रिज्यूम बनाना कैसे है। तो बिफोर दिस, इफ एनीवन हैज डाउट, एनीवन, सो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल प्रोसीड। हाँ बहुत सारे टूल्स हैं, आज मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा अभी, मतलब चैट बॉक्स में मैसेज आ रहा है किसी का कि सर कोई सॉफ्टवेयर है अपार्ट फ्रॉम दिस। बिल्कुल सॉफ्टवेयर है, देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच वी यू कैन यूज टू मेक योर रिज्यूम सीवी। वर्ड फाइल आप विनवर्ड में चले जाओ, MS वर्ड में भी ऑप्शन जो टेम्पलेट्स आते हैं वहाँ पर भी रिज्यूम आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च मारोगे
ड्राफ्टेड रिज्यूम, रिज्यूम ड्राफ्टेड सॉफ्टवेयर करके लिखोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत जगह है, मतलब रिज्यूम के तो बहुत सारे आपको मिल जाते हैं ऑप्शन, ड्राफ्टर वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी इजी रहता है रिज्यूम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एंड इम्पैक्टफुल सीवी और रिज्यूम। इम्पैक्टफुल तो देखो आपके टैलेंट से बनता है। रिज्यूम हमेशा आपके टैलेंट और आपकी रिप्रेजेंटेशन से मिलता है। आप रिज्यूम को कितने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले के सामने वाले के सामने, वो डिपेंड करता है कि क्या इम्पैक्ट जोड़ता है वो। आप रिज्यूम को एकदम क्रिस्प क्लियर बनाओ। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा एक रिज्यूम का, इसमें मैंने एक रिज्यूम का ना एग्जांपल भी सेट कर रखा है। तो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, मतलब आप लोग के लिए स्पेशली वो रिज्यूम मैंने बनाया है एज अ शॉर्ट, ऐसे ही एक डमी रिज्यूम बनाया है। और आप देखना वो शॉर्ट और कितना अच्छे से बना होगा रिज्यूम, मैं दिखाता हूँ। टेली प्राइमरी स्किल टू मोर एक्सप्लेन। देखो ये साक्षी सिंह का मैसेज आ रहा है रिगार्डिंग की टेली प्राइम से। तो वो कह रहे हैं कैसे और स्पेसिफाई क्या, इस बस क्या पूछा इन्होंने, एक मिनट। इन्होंने ये पूछा टेली प्राइम की स्किल्स टू को मोर एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं रिज्यूम में। देखो टेली प्राइम आता है आपको, टेली प्राइम बहुत लोगों को आता है। आपको आ रहा है, बहुत लोगों को आ रहा है, सब यही लिख रहे होंगे कि मुझे टेली आता है। लेकिन अगर आपको इम्पैक्टफुल बनाना है तो आप लिखो मुझे टेली में सर रिकंसिलेशन आता है, मुझे टैली में एंट्रीज करनी आती है, वो भी मैनुअली नहीं, सीधा बैंक स्टेटमेंट से इंपोर्ट करके। मुझे टैली सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बनाना आता है, मुझे टैली सॉफ्टवेयर से ई बिल बनाना आता है। आप ये चीजें मेंशन कर सकते हो। टैली प्राइम से, समझ रहे हो आप, टैली प्राइम से मेरे को सर रिपोर्टिंग करनी आती है, मुझे MIS रिपोर्ट बनानी आती है। तो ये चीजें आपको क्या करेंगी, आपका रिज्यूम इम्पैक्टफुल बनाएंगी। आपको बताएंगे कि ये चीजें टैली प्राइम के अंदर भी ये चीजें बहुत फोकस्ड वाली चीजें आती हैं। तो इस तरीके से आप हर सॉफ्टवेयर का जो मैक्सिमम जो सबसे अच्छा पार्ट है उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आप उसको एक्सप्लेन कर दो रिज्यूम के अंदर, वो भी बुलेट्स के अंदर। तो वो आपको क्या होता है, वो एक बहुत इंपैक्टफुल आपका रिज्यूम बन जाता है। अब चलते हैं रिज्यूम राइटिंग के ऊपर, कि रिज्यूम राइटिंग मतलब रिज्यूम लिखना कैसे है। देखो फॉर बिजी हायरिंग मैनेजर्स, जो आप लोगों के मैनेजर हैं, जो जो रिक्रूट करते हैं, जो HR होते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं, यू नो वेरी वेल। योर रिज्यूम इज क्विक समरी ऑफ योर करियर and can decide if you get an interview in your job search. A great resume is your ticket in. तो ये क्या कहते हैं कि आपके जो मैनेजर हैं वो बहुत बिजी हैं, जो आपके HR होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, ये आप सबको पता ही होता है। HR के पास ये एग्जांपल ही ले लो आप, 1000 रिज्यूम आ रहे हैं उनके पास। तो सिंपल सी बात है, 1000 रिज्यूम एक एक करके तो वो रिज्यूम को देखेंगे नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो रिज्यूम को जब देखते हैं ना, तो रिज्यूम को देखते ही जो उसकी रिज्यूम की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, जो डिस्क्लोजर होता है, वो पहले ही झलक में डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इतने रिज्यूम तो पहले ही डिस्क्वालीफाई कर देने हैं। डिस्क्वालीफाई का मतलब क्या है, उसके टेक्स्ट ही उनको समझ नहीं आ रहे, टेक्स्ट भी गलत लिखे हैं, ग्रामर सही नहीं लिखी हुई, कुछ भी दिख रहा है। तो 1000 में से ये मान के चलो आप 700-800 रिज्यूम तो यूं ही निकाल देते हैं वो, जो आपके HR होते हैं। तो आप अगर अच्छा रिज्यूम बनाओगे, CV अच्छा बनाओगे, तो ये आपकी टिकट है आपको एंट्री करने की। ठीक है ना। आपके अंदर स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने रिज्यूम ही अच्छा नहीं बनाया, आपने उसमें ग्रामर मिस्टेक कर दी, आपने बहुत चीजें गलतियां कर दी उसके अंदर, आपने अपनी स्किल को बता नहीं पाए, आपने जॉब के अकॉर्डिंग रिज्यूम नहीं दिया। तो आप सोचो, आप उस इंटरव्यूअर के पास ही नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप पास पहुंच ही नहीं पाए तो आप अपने आप को दिखाई नहीं पाओगे कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है। ठीक है ना। तो आपको टैलेंट दिखाने के लिए आपको रिज्यूम अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी तो आपको टिकट मिलेगी ना अंदर जाने के लिए। अदरवाइज तो आप बाहर से छट के निकल जाओगे। तो इसीलिए रिज्यूम अच्छा बनाना ही एक बेहतर और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जॉब लगने के लिए। ठीक है ना। हेयर आर बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइटिंग अ रिज्यूम। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अब आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स लेके हुए हैं। रिज्यूम शुड बी क्रिस्प, क्रिस्प होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्प मतलब क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्प होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए। मतलब क्या कहना चाहता है ये, कि रिज्यूम जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो, कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई ऐसा धुंधलापन नहीं दिखना चाहिए, हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपने 12th करी, बिल्कुल करी, कब करी, 12th में मैंने 2024 में करी 12th, साफ मेंशन करो। किस बोर्ड से करी, CBSE बोर्ड से करी, कब करी, 2024 में करी। ठीक है ना। जैसा मैंने बताया था कि आई हैव कम्प्लीटेड माई 12th फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओ सॉरी, फ्रॉम CBSE बोर्ड
इन 2024। तो आप में इस लाइन में देखोगे आपका सब कुछ मेंशन हो गया है ना। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, आपको हर चीजें क्रिस्टल क्लियर देनी होती है इंटरव्यूअर को, कि इंटरव्यूअर के दिमाग में कंफ्यूजन ही ना बैठे। और सबसे लास्ट मैंने आपको एक पॉइंट दूंगा, मुझे याद दिलाना कि एक स्टार पॉइंट है आपके लिए रखा है, मैंने एक स्टार पॉइंट रखा है। जब क्लास वाइंड अप होने वाली होगी ना, मुझे याद दिलाना कि सर एक स्टार पॉइंट डिस्कस करना था, वो रह गया। ठीक है ना, अगर मैं भूल जाता हूँ तो। और इम्पैक्टफुल का मतलब क्या हुआ, इम्पैक्ट वाला होना चाहिए, ऐसे इम्पैक्ट आ जाए बिल्कुल, हाँ बंदे ने प्रोफेशनल लिखा है बिल्कुल रिज्यूम। ठीक है ना। इम्पैक्टफुल मैंने बताया था कि जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा आपने क्या मांगा, उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने रिज्यूम को बनाया रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, वो होता है इम्पैक्टफुल। हाँ जी मोहनी जी बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, अगर जैसे रेज्यूमे में हम फोटो वगैरह ऐड कर देते हैं तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। फोटो हमेशा, अच्छा। हमेशा अलग रिज्यूम आपका एक अलग शो शो करती है, आपको इम्पैक्टफुल बनाती है। ओके। हाँ देखो, फोटो होती है, अब फोटो एक आप नहीं लगा रहे, फोटो 10 लोग लगा लेते हैं, लेकिन फोटो लगाने का भी तरीका होता है। यस आपने सर। फोटो लगाई, इसका मतलब है कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जॉब लगाने के लिए। सबसे पहले यस एम्प्लॉयर के सर। दिमाग में क्या आता है कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जॉब पाने के लिए, ये आपकी सबसे बड़ी यस। स्किल है। ठीक है ना, जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे तो एम्प्लॉयर को लगेगा ये बंदा काम कर रहा है, मतलब ये बंदा ये चाहता है जॉब लेना। और फिर फोटो के अंदर भी बड़ी चीजें हैं। आपके फोटो में जो बैकग्राउंड होना चाहिए, इट शुड बी वाइट। यस सर। फोटो जो पहने हो उसमें ये नहीं आप कोई सी भी टी शर्ट पहन के फोटो खिंचवा लिए। यस सर। एक प्रोफेशनल शर्ट होनी चाहिए। अगर आपके जी पास सर। कोट है तो आप कोट वियर करो। बैकग्राउंड शुड बी वाइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भड़कीले कलर के कपड़े पहन के आप फोटो खिंचवा रहे हो, नहीं। इट शुड बी अ प्रोफेशनल फोटो। वाइट बैकग्राउंड विथ कोट इफ पॉसिबल, और एक आपकी शर्ट होनी चाहिए वाइट कलर में, या जो भी आप पसंद करते हो उसमें। ओके। ठीक है ना। तो इट विल बी अ ग्रेट इम्पैक्ट। ठीक है ना। ओके। थैंक यू सर। ओके, लेट्स चलते हैं हम सेकंड पॉइंट के ऊपर, कवर ऑल द बेसिक्स। जो भी आपके रिज्यूम में बेसिक्स है, चाहे वो आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे आपके वो अचीवमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, इट शुड बी डिस्क्लोज, वो आपका डिस्क्लोज होना चाहिए। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, दिखाना चाहिए आपको, रिज्यूम के अंदर दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप लिख ही नहीं रहे। थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन ऑल रिस्पेक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, आप गलत मत लिखो कोई भी चीज। आपने 2019 में कुछ किया है, 10th करी है या 24 में करी है, उसको आप एक्यूरेट बताओ। ऐसा नहीं कि आप 24 में कर रखे हो 12th और आप बता रहे हो कि मैंने 25 में किया है। झूठ नहीं बोलना है, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। वो ट्रैक तो कहीं ना कहीं कर ही लेंगे, उनको तो आपके डॉक्यूमेंट से पता लगी जाए आप बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो। तो हमेशा आपको सही चीजें बतानी है, आपको एक्यूरेट चीजें रखनी है, आपको गलत नहीं बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, डू नॉट यूज एक्रोनीम्स, एग्जाम्पल वर्कड विद वीपी। एक्रोनीम्स का मतलब क्या होता है, रिज्यूम में कभी भी आप शॉर्ट फॉर्म यूज मत करो। कई होते नहीं है, आई वर्कड इन एससीओ। एसईओ मतलब क्या होगा समझ नहीं आएगा, मतलब चलो कोई दूसरा है, मान लो कोई एचआर है। एचआर तो कई बार जो एचआर होते हैं वो नॉर्मल नॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं, बाद में वो एक्सपर्ट के पास आता है। वो एसईओ लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा एम्प्लॉयर को एसईओ का मतलब क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। मान लो किसी ने दिखा, देखो एग्जाम्पल लिखा है ना सामने, वर्कड विद वीपी। अब वीपी का मतलब कौन बताएगा मुझे, वीपी का मतलब क्या है। देखो किसी को नहीं समझ आ रहा ना वीपी का मतलब क्या है, यही है कंफ्यूजन। यही कंफ्यूजन नहीं देनी है आपको अपने अपने एम्प्लॉयर को। वीपी का मतलब वाइस प्रेसिडेंट है। अब ये कहना चाहता है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ काम करता हूँ, और इसने शॉर्टकट में लिखा वर्कड विद वीपी। ठीक है ना। तो आपको कभी भी वीपी यूज नहीं करना। तो इस चीजें की शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम्स यूज मत करना रिज्यूम के अंदर। ये एम्बिगुइटी बना देती है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर सॉरी एम्प्लॉयर्स के लिए और एचआरस के लिए। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है, एक्सप्लोर अदर रीजंस फॉर इंस्पिरेशन। आपको अगर कोई डाउट हो, आपको कोई भी रिव्यू देखना हो, तो आप अदर्स के भी रिज्यूम को एज ए इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप उनके रिज्यूम से कुछ सीख सकते हो कि उन्होंने क्या बेटर वे में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जैसे आपने आपने सारा रिज्यूम देखा, सबने रिज्यूम देखा, बहुत बढ़िया रिज्यूम था, लेकिन अगले बंदे ने क्या किया था, जो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल्स थी
उसने टेबल में डाल रखी थी। टेबल मतलब कैसे कि 12th ऊपर लिखा, फिर उसने 10th लिखा, फिर अपने उसने ऊपर ग्रेजुएशन लिखी, और वो टेबल में था। और टेबल दिखने में बहुत अच्छा लगता है रिज्यूम के अंदर, इंस्टेड ऑफ कि आप एक पैसेज टाइप में लिख रहे हो। तो टेबल इट इज लुकिंग ग्रेट इन द रिज्यूम। तो उससे क्या हुआ, आपने उस चीज से सीखा कि इसने टेबल में यूज किया, मैं भी टेबल यूज करूंगा। तो आपको हमेशा दूसरों से इंस्पायर भी होना है। अगर आपको चलती चलती कि वो चीज़ अच्छी लगी मुझे, तो वो अपनी चीज़ अपनी अपने रिज्यूम में अडॉप्ट कर लो। ठीक है ना, तो उससे आप सीख भी रहे हो, आपकी चीज़ें बढ़ती जा रही है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है आपका। 6 पॉइंट है, यूज अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। आपको फ्यू वर्ड्स ही लिखने हैं, पूरी कहानी नहीं लिखनी रिज्यूम के अंदर, क्योंकि रिज्यूम होता है शॉर्ट, और एम्प्लॉयर को जल्दी जल्दी रिज्यूम पढ़ना होता है। तो आप शॉर्ट चीज़ें लिखें, बड़ी चीज़ें ना लिखें। ठीक है ना। अब आप लिख दो, अब आप एग्जाम्पल के लिए आपने मान लो 10th करी किसी स्कूल से, तो आप लिख दोगे आई हैव कंप्लीटेड माई 10th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट कोएड सेकेंडरी स्कूल सरस्वती गार्डन करके आप पूरा लिख रहे हो। क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, रीजन क्या बन रहा है, मतलब क्या फायदा है इसका, स्कूल का पूरा नाम मेंशन करने की क्या जरूरत है। आपने सीबीएसई बोर्ड लिख दिया, ईयर लिख दिया, 12th लिख दिया, बस इनफ। आपको स्कूल का नाम थोड़ी मेंशन करना है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि फ्यू वर्ड्स के अंदर लिखना है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी रिज्यूम के अंदर। क्वांटिफाई यूर अकम्प्लिशमेंट वेन एवर पॉसिबल। क्वांटिफाई का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे क्वांटिफाई, क्वांटिफाई का मतलब क्या होता है, हमेशा नंबरिंग के साथ रखनी चाहिए चीज़ें। नंबरिंग के साथ चीज़ें जैसे कैसे, एग्जाम्पल के लिए आपने 12th कंप्लीट करी, 12th में आपके मान लो 96% आए। ठीक है ना, तो बहुत लोग होते हैं वो लिखते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई 12th विथ फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन लिख दिया, आपने मार्क्स को क्वांटिफाई नहीं किया। मतलब आपने क्वांटिफाई, मतलब आपने क्वांटिफाई में नहीं लिखा कि आपने 96 परसेंटाइल लिए थी। तो आप हमेशा उसको क्वांटिफाई करो, इससे क्या होगा, आपके रिज्यूम में क्लैरिटी मिलेगी, क्लियरिटी मिलेगी। और लोग लिख देते हैं कंप्लीटेड भी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, नो डाउट इट इज ऑल्सो गुड, बट आप उसमें परसेंटेज मेंशन करते हो, तो उससे एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखता है रिज्यूम के अंदर, और क्लैरिटी मिलती है अगले वाले बंदे को, चाहे वो आपका एचआर हो, चाहे वो आपका ओनर हो। तो ठीक है, आप उसको क्वांटिफाई कर दो। ठीक है ना, उस चीजों में लिखो आप उन्हें। यूज कीवर्ड्स दैट एम्प्लॉयर आर यूजिंग इन देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। अब आप सब पढ़ते होगे, कहीं ना कहीं आप स्टडीज करते हो, आप स्टडी में देखते हो टीचर बताते हैं कि आपको कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होता है। ठीक है ना, तो कीवर्ड्स क्या हो गया, आपका जो को आपके लिए जॉब आई मार्केट में, आपने Naukri.com, लिंक्डइन कहीं से भी जॉब अप्लाई करी, वहां पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन था उसमें लिखा हुआ था इस बंदे को कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए। आपने कम्युनिकेशन स्किल का जो पॉइंट था, कम्युनिकेशन स्किल का जो नाम था, वो वाली आपने क्या करा, वहां से उस स्किल को कॉपी किया। वो दैट इज अ कीवर्ड विच यू आर गोइंग टू यूज। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपने वहां से उठाया और आपने अपने रिज्यूम में चेप दिया। ठीक। उसके बाद उसने बोला कि उसको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, वेल वर्स विद एक्सेल होना चाहिए। आपने एक्सेल उठाया और अपने में डाल दिया, आपको आता भी था, आपने इसको यूज करा एज अ कीवर्ड। जब इंप्लॉयर देखेगा तो इंप्लॉयर हमेशा ये चीज मेंशन देखेगा कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन में डाला था, जो मैंने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज डाले थे, KRA, क्या उसमें वो जॉब के जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो इसके रिज्यूम में आ रहे हैं। तो वो देखेगा हाँ मैंने एक्सेल मांगा था, इसको एक्सेल आता है। मैंने मैंने एक्सेल मांगा था, इसको एक्सेल आता है। मैंने कम्युनिकेशन स्किल मांगी थी, इसको कम्युनिकेशन स्किल भी आती है। तो जो भी चीजें उसको रिक्वायरमेंट थी वो आपने कीवर्ड उठा लिया उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में से, और वहीं से उठा के आपने रिज्यूम में फिट कर दिया। तो क्या हुआ, आपका जो रिज्यूम होगा ऑटोमेटिक इम्पैक्टफुल हो गया, क्योंकि वो मैच तो करेगा ना कि मेरे कीवर्ड्स और उसके कीवर्ड मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है ये स्टूडेंट, या फिर जो भी इम्प्लॉई आया हमारे पास वो मैच करेगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो इम्पैक्टफुल बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, प्रूफ रीड सेवरल टाइम्स टू कैच टाइपोज एंड मिस स्पेलिंग। जब भी आप रिज्यूम लास्ट में बना लो, हमेशा अपने रिज्यूम की प्रूफ रीडिंग करो। प्रूफ रीड का मतलब क्या हो गया, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक से क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि आप प्रोफेशनल हो, इतना अच्छा रिज्यूम बना रहे हो, इतना बेहतर सब कुछ कर रहे हो, और आपकी स्पेलिंग ही गलत है। दिल्ली में आपने कुछ और ही लिख दिया। ठीक है ना, पिन कोड आपने गलत डाल दिया आपके। और जब ज़्यादातर जो स्टूडेंट से गलती होती है, वो सबसे ज़्यादा गलती होती है, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत लिख दी, गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी, CBSE बोर्ड में CNSE बोर्ड लिख दिया, पूर्वांचल में कुछ और ही लिख दिया। मतलब इस तरीके की बड़ी मिस्टेक होती है रिज्यूम के अंदर, प्रूफ रीडिंग करते वक्त ये पता लग जाता है। अभी मैंने पिछली बार भी क्लास ली थी, सक्षम रोजगार सोसाइटी को उन्होंने कुछ और ही लिख दिया था, संगम भारती लिख दिया था।
मैंने एक बच्चे का देखा था रिज्यूम, आई हैव एक्सपीरियंस इन संगम भारती। मतलब आप सोचो उससे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी एक मिस्टेक उसका पूरा वर्ड का पूरा मीनिंग बदल देती है। तो प्रूफ रीडिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जब भी आप फाइनलाइज करो रिज्यूम को, जब भी प्रिंट करने जाओ, प्रिंट से पहले प्रूफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखो, प्रूफ रीडिंग तो करनी ही करनी है आपको। 10th पॉइंट आपका आता है, योर रिज्यूम इज द ओनली सोर्स ऑफ क्वेश्चन बैंक फॉर द इंटरव्यूअर। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आपका इंटरव्यूअर और आप दोनों एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, और आपका रिज्यूम है, उसी की नॉलेज आपके एम्प्लॉयर के पास है आपके बारे में। तो रिज्यूम से ही वो सोर्स मतलब वही आपका सोर्स है एम्प्लॉयर का, जिससे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपने रिज्यूम को कुछ भी उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन मेंशन मत करो, क्योंकि जो भी आप मेंशन करोगे वो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना। 11th पॉइंट आपका, यूज एनी सिंपल टेम्पलेट फॉर रिज्यूम इन करंट ट्रेंड। वो यही कह रहे हैं कि जो भी ट्रेंड में चल रहा है रिज्यूम का टेम्पलेट, मैंने कहा था ना, टेम्पलेट आप विद फाइल से ले सकते हो, विनवर्ड से ले सकते हो। आजकल तो चैट जीपीटी है, ग्रोक है, बहुत सारे आपके एआई आ चुके हैं। आप उस पर बोलो, अपनी इन्फॉर्मेशन डालो, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी 10th मेरी 12th, मेरा सब कुछ एड्रेस डालो, उसको बोलो प्लीज क्रिएट रिज्यूम, वो रिज्यूम क्रिएट कर देगा। उसको अगर वो वर्ड फाइल बना देता हो वो अच्छी बात है, उसको वर्ड फाइल बनाने के लिए भी तो आजकल तो सॉफ्टवेयर हैं, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना रिज्यूम बना सकते हो। ठीक है ना। 12th है, शुड बी इन 2 पेजेस। रिज्यूम जो होगा हमेशा शॉर्ट होगा, 1-2 पेजेस को ही होता है। तो आप ट्राई करो कि कम पेजों में बने, इतनी कहानी मत लिख दो कि लंबा चला जाए, 3 पेजों में चला जाए। ठीक है ना, कंटेंट है नहीं और 3 पेजों में चला गया। अब आते हैं रिज्यूम राइटिंग, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं कि प्रैक्टिकली जब रिज्यूम बनाते हैं तो राइटिंग कैसे करते हैं उसके अंदर। तो आप सबके सामने देखो इन्फॉर्मेशन लिखा, टाइटल ऑन टॉप सेंटर। टाइटल बोले तो रिज्यूम या सीवी जो भी आप लिख रहे हो वो टॉप पे होना चाहिए। रिज्यूम है या टॉइट सीवी है, वो आपका टॉप पे होना चाहिए। अभी आपको दिखाऊंगा डेमो भी। प्रोफेशनल फोटो ऑन टॉप राइट, जैसा भी मोहिनी ने पूछा था कि सर क्या फोटो इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है फोटो। फोटो से आपका रिज्यूम बिल्कुल अलग दिखता है लोगों से। 100% अगर रिज्यूम अप्लाई हो रहे हैं तो आप ये मान के चलो 85 to 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फोटो नहीं लगाई होगी, 15% लोगों ने फोटो लगाई होगी, और 15% में से 90% या 80% लोग सेलेक्ट होते हैं। पता है क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ फोटो। और फोटो में भी कौन सी फोटो? प्रोफेशनल फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है ना। तो फोटो ही मतलब यही तो चीजें हैं, यही चीजें जो आपके रिज्यूम को डिफरेंट बनाती है लोगों से। सब ऐसे बना के दे देंगे, बट आप जब फोटो लगाओगे, एक प्रोफेशनल फोटो लगाओगे, तो लुक जो होता है बिल्कुल अलग दिखता है। लगता है कि हाँ कितना क्रिस्टल क्लियर रिज्यूम है। तो फोटो शुड बी देयर। कंप्लीट एंड फुल नेम बिलो द फोटो। फोटो के नीचे आपका फुल नाम होना चाहिए, जो भी आपका नेम है वो आप नेम डाल दो। ईमेल एंड मोबाइल नंबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग whenever you are creating your resume, because आफ्टर दे अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस लड़के को सिलेक्ट करना है, तो जो वो इन्फॉर्मेशन या कॉल या मेल करेंगे वो आपके रिज्यूम पे जो मेल लिखी होती है ना, वो या फिर जो आपका नंबर होता है, वो उसी नंबर पे कॉल करते हैं और उसी मेल आईडी पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल करते हैं, यू आर सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू फॉर द सेकंड राउंड। तो मेल हमेशा सही होनी चाहिए, उसको हमेशा ध्यान से लिखना, मेल और मोबाइल नंबर, इट शुड बी एक्टिव। ऐसा ना हो कि अपने भाई का दे दिया आपने, इंटरव्यू वाले रिज्यूम के अंदर अपने भाई का नंबर लगा दिया, भाई कहाँ है आप कहाँ हो। तो अपना नंबर, पर्सनल अपना नंबर रखो, ईमेल आईडी अपनी रखो, कि कोई भी नोटिफिकेशन है तुरंत आप एक्टिवली उसको रिप्लाई कर पाओ। फोर्थ फिफ्थ है ऑल्टरनेटिव या इमरजेंसी नंबर विद नेम एंड रिलेशन। आप अपने नंबर के साथ अपने ऑल्टरनेटिव नंबर रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपका नंबर कहीं ब्लॉक है, आप एग्जाम देने गए हो, कुछ भी है, आपका फोन स्विच ऑफ है, तो आपके पापा का नंबर या आपके ब्रदर का नंबर या सिस्टर का नंबर डाल दो, कि वो उनसे कांटेक्ट कर पाए एट द सेम टाइम। ठीक है ना। नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस ऑन लेफ्ट साइड अलाइन विद अबव 3 and 4 and 5th पॉइंट। ठीक है ना, मतलब वो बता रहा है पोस्टल कोड भी डालना होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके एड्रेस में अगर आपको उनको कोरियर करना होगा तो इट शुड बी इजी फॉर देम, कि वो आपको कोरियर कर पाए आपको अपॉइंटमेंट लेटर को। कि मान लो आप सेलेक्ट हो गए, आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो गया, आपका इंटरव्यू बेस्ट होगा, तो वो आपको सेलेक्ट करके आपके रिज्यूम को, आपके ग्रीटिंग लेटर को आपको घर भेजना है, तो वो पोस्ट करेंगे, तो इसलिए पोस्टल चीज़ें भी, एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। और 7 में आ रहा है टाइटल करियर ऑब्जेक्टिव इन सेंटर और लेफ्ट। सभी जानते हो आजकल रिज्यूम में सभी ऐड करते हैं कि करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा करियर ऑब्जेक्टिव है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना, एक अच्छी पोस्ट पे जाना कंपनी के अंदर, एक रेपुटेड कंपनी में काम करना। जो 2-3 लाइनें स्टार्टिंग में होती हैं,
तो वो ध्यान से लिखनी है आपको, जिससे इम्पैक्ट और अच्छा आता है। दिखाता हूँ, ये देखो एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। ये देखो आपको सेगमेंट 1 का एग्जाम्पल दिख रहा होगा। अभी सेगमेंट 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब सेगमेंट 1 का एग्जाम्पल देख लो। देखो आपने लेफ्ट में भी फोटो लगा सकते हो, राइट में फोटो लगा सकते हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे देखो राइट साइड में फोटो लगी है, लेफ्ट में देखो विक्की नाम आ रहा है, नीचे एड्रेस आ रहा है, कॉन्टेक्ट डेट नंबर आ रही है, ईमेल आईडी आ रही है। और आप जो भी डिटेल मेंशन करना चाहते हो, जितना आप मेंशन करना चाहते हो उतना मेंशन कर सकते हो। ये तो ब्लैंक बना हुआ है बिल्कुल रिज्यूम, इसमें कोई ज्यादा डिटेल मेंशन नहीं है। और हाँ, जो आप करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हो, हमेशा याद रखना, करियर ऑब्जेक्टिव आप 5-6 बार तो पढ़ के जाना। कई बार तो हमने करियर ऑब्जेक्टिव पढ़वाया लोगों से, यहाँ पे नहीं, पहले जो बच्चे आते हैं उन्हें अपना करियर ऑब्जेक्टिव पढ़ना नहीं आया। उन्होंने किसी का रिज्यूम देखा, कॉपी किया, पेस्ट किया, आ गए। आप अपने, मैंने क्या बोला था, सोर्स होता है, इंटरव्यूअर का सोर्स होता है आपका रिज्यूम। और आपने रिज्यूम में लिखा है करियर ऑब्जेक्टिव, और आपने उस खुद करियर ऑब्जेक्टिव को एक बार भी नहीं पढ़ा। और इंटरव्यू के बाद तो पहली लाइन ही यही दिखी, करियर ऑब्जेक्टिव। उसने बोला पढ़ के दिखाओ, आप उसमें तो लाने लगे। ठीक है ना। तो वो दिक्कत हो जाती है। तो अपना करियर ऑब्जेक्टिव अगर आप लिख रहे हो ना, तो आपकी इस पे पकड़ होनी चाहिए, कम से कम 5 से 10 बार पढ़ो। इसकी हिंदी को जानो, कि कभी कोई पूछ भी ले तो आप एक्सप्लेन कर पाओ कि मैंने ये लिखा था सर। ठीक है, कि टू सिक्योर अ चैलेंजिंग पोजीशन इन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, टू एक्सपेंड माई लर्निंग नॉलेज एंड स्किल। ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ लो, कि नेक्स्ट टाइम कभी आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओ। अब आते हैं रिज्यूम राइटिंग में सेगमेंट 2। सेगमेंट 1 हमारा हो चुका, बेसिक इंफॉर्मेशन विद फोटो। अब आते हैं सेगमेंट 2 के ऊपर। सेगमेंट 2 में क्या होता है, विच इज रिलेटेड टू योर क्वालिफिकेशन एंड योर एक्सपीरियंस। फर्स्ट पॉइंट इज एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले अपनी हायर क्वालिफिकेशन लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रेजुएशन करी है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, 12th, 10th, और कोई अचीवमेंट करिए तो वैसे, मतलब हायर से नीचे नीचे लेवल में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको नीचे नीचे आना है। हमेशा अपनी हायर क्वालिफिकेशन को ऊपर लिखना होता है। ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है आपके रिज्यूम के अंदर। दूसरा आता है ईयर। किस ईयर, मतलब ईयर, ड्यूरेशन फ्रॉम एंड, मतलब आपको ड्यूरेशन डालनी, कब से कब आपने कौन सा कोर्स किया है। अगर आपने 12th करी है तो कब से करी है, कब से कब तक करी है। स्ट्रीम मतलब कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, वो भी डाल सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, कॉलेज। कॉलेज मेंशन कर सकते हो आप। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो आप, अब हर तरीके के लोग वहाँ पे मिलते हैं। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया होता है, कोई पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया होता है। तो यूनिवर्सिटी नेम शुड बी देयर। इट विल बी वेरी इजी और क्लियर हो जाएगा आपके एचआर के लिए जानने के लिए, कि उन्होंने कहाँ से कंप्लीट करी है अपनी ग्रेजुएशन। नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट में वैसे क्या होता है आजकल, जैसे एग्जाम्सन आ जाती है, और किसी किसी की डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, 75% से ऊपर मार्क्स आ गए, डिस्ट्रक्शन आ गई, तो वो जरूर मेंशन कर देते हैं कि आई हैव गॉट डिस्टिंक्शन इन दिस मैथ्स एग्जामिनेशन। तो वो अपने आप को इम्पैक्टफुल दिखाता है कि मेरी मैथ्स में पकड़ है। उस तरीके से आप सब्जेक्ट में एग्रीगेट परसेंटेज को हाईलाइट कर सकते हो। परसेंटेज का तो वही समझ लो आप, जैसे आपने 10th में 89% लाए, 85% लाए, तो आप उसको मेंशन कर दो। तो इंटरव्यूअर के लिए क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ, इतने परसेंटेज इसके इस एग्जामिनेशन के अंदर आए थे। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आता है 12th एंड 10th स्टैंडर्ड डिटेल्स एज बिलो अबव। तो 10th एंड 12th का मैंने बता ही दिया आपको, ग्रेजुएशन, 12th, फिर 10th। इस तरीके से आपको ऑर्डर में अपनी क्वालिफिकेशन रिज्यूम में मेंशन करनी है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप एटसेट्रा। गिव कंप्लीट डिटेल विद नेम, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ एनी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजल्ट्स एटसेट्रा। तो जैसा कि आपने कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करा, कोई अलग सा इवेंट है जो आपकी जॉब के लिए रेलेवेंट है। जैसे मान लो टीम बिल्डिंग का आपने लिखा कि मेरे अंदर एक टीम बिल्डिंग की स्किल है, मेरे अंदर कम्युनिकेशन की स्किल है। मतलब मान लो जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि आई वांट अ पर्सन हु हैज कम्युनिकेशन स्किल, हु हैज जॉब बिल्डिंग, हु हैज लीडिंग स्किल होनी चाहिए, वो लीड कर पाए लोगों को, टीम बिल्डिंग की स्किल होनी चाहिए। तो आप जब देखोगे जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे, ये कीवर्ड्स हैं आपके लिए, मैंने बताया था ना पहले, ये सब कीवर्ड्स हैं। तो इस कीवर्ड का आप अच्छे से यूज करो, और आप अपने इंटर्नशिप को दिखा दो कि मैं अपने इंटर्नशिप में एज अ कोऑर्डिनेटर काम करता था, मैं अपने इंटर्नशिप में एज अ सेल्स कोऑर्डिनेटर काम करता था, मैंने वहां पे सेल्स भी करके दी है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ये चीजें क्या होती है, आपके रिज्यूम को और इम्पैक्टफुल बनाती है। ठीक है ना। तो जितना जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन हो रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब, आपको अपने रिज्यूम को क्रिएट करना है।
फर्स्ट पॉइंट आता है एडिशनल टेक्निकल नॉलेज, नेम, ड्यूरेशन, सोर्स एटसेट्रा। अगर आपके पास कोई भी एडिशनल नॉलेज है जो आपके जॉब के रिगार्डिंग है और थोड़ी सी आपसे हटकर है, जैसे एग्जांपल के लिए आप कंप्यूटर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओ सॉरी आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अकाउंट्स की तो आपने नॉलेज डाल दी, मुझे टैली आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। आपने मान लो कंप्यूटर हार्डवेयर का भी कोर्स कर रखा है, तब उस कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स को भी डाल दो, तो क्या होता है, शेरी ऑन द टॉप। तो क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, वो आपके रिज्यूम को और इम्पैक्टफुल और आपको वो एक शानदार एक इंप्रेशन देता है इंसान को कि इसको ये चीजें भी आती थी, इसको हार्डवेयर का कोर्स भी आता है, कल को कभी इशू होगा तो ये अपने आप उस चीज को कर लेगा, मतलब ये बहुत टैलेंटेड लड़का है। ठीक है ना। बाकी मैंने देखो नीचे नोट डाला हुआ है, इट इज एज्यूम दैट यू आर अप्लाइंग फॉर योर फर्स्ट जॉब। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। इफ यू सम जॉब एक्सपीरियंस, हो एक्सपीरियंस डिटेल विल बी गिवन फर्स्ट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस को मेंशन कर दो कि मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, इतने इतने साल काम किया। एक्सपीरियंस शुड बी मेंशन इन योर रिज्यूम अगर आपको एक्सपीरियंस है। ठीक है ना। अब आते हैं हम सेगमेंट 2 के एग्जाम्पल के डेमो के तरफ, कि हमने देखो एक डेमो दिखा रखा है आपके सामने। एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखो, जैसे मैंने कहा था डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पहले हायर थी, पहले बीकॉम हुई। बीकॉम किस कॉलेज से हुई, देखो मैंने कहा था कॉलेज आप मेंशन कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। कितने देखो, कितने क्रिस्टल क्लियर में लिखा हुआ है, बीकॉम करी है, बी कॉमर्स करी है, बीकॉम बीए प्रोग्राम करी, जो भी आपने की है। किस यूनिवर्सिटी से करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज से भी की, ये भी लिख दिया। और कब से कब तक करी ये भी लिख दिया। और आप सामने ईयर ऑफ पासिंग को भी लिख दो, किस साल में आप पास हुए थे। और परसेंटेज और सीजीपीए भी आप मेंशन कर सकते हो, तो कितना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके लिए, है कि नहीं। तो जब आप इतनी डिटेल आप अपने एम्प्लॉयर को दे दोगे तो उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा पूछने के लिए। कहेगा यार इतना इतना क्लियर तो इन्होंने पहले से ही लिख दिया, तो मुझे और पूछने की जरूरत क्या है। तो इसी तरीके से कितने रिज्यूम शुड भी क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद देखोगे आप 12th का डाल दिया उन्होंने, फिर 10th का डाल दिया। फिर अगर आपने कोई ट्रेनिंग कर रखी है, कहीं आपके पास कोई एडिशनल ट्रेनिंग आपने कर रखी है, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे वो किसी ग्राफिक डिजाइनर की हो, चाहे वो किसी डिजाइनिंग की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है, कोई इंटर्नशिप करी है, इट शुड बी मेंशन। स्किल या ट्रेनिंग, कोई आपने बेसिक कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रखा है या कोई ट्रेनिंग कर रखी है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर आता है, मान लो आपको MS वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आता है, तो आप उस सबको मेंशन कर दो, जिससे वो आपकी और रिज्यूम को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। अब आते हैं हम रिज्यूम राइटिंग के सेगमेंट नंबर 3 पे। दो सेगमेंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ रहा है हमारा सेगमेंट नंबर 3। उसमें क्या होता है, अचीवमेंट अवार्ड रिकॉग्निशन कॉम्पिटिशन। अगर आपने किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया हुआ है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कि आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन दिस कॉम्पिटिशन। कोई अचीवमेंट है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड, आप उसको मेंशन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है गेम्स एंड स्पोर्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी PT टीचर की जॉब आई है, तो आप देखो ऑब्वियसली बात, वहाँ थोड़ी लिखोगे मुझे टैली सॉफ्टवेयर आता है, तो आप ये लिखोगे मुझे 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 गेम्स में मैंने फर्स्ट पोजीशन ली, मैंने वॉलीबॉल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज गेन किया। ठीक है ना। तो आप उसको जॉब के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूम को मॉडिफाई कर दोगे। हॉबीज इंटरेस्ट टू बी स्पेसिफिक एंड फोकस विच यू आर प्रैक्टिसिंग। जो भी हॉबीज कर रहे हो आप सच लिखो, ऐसा मत लिखो कि आपको आती नहीं थी, आपने लिख दी कि माई हॉबीज टू बुक रीडिंग, और आप बुक रीडिंग का उन्होंने पूछ लिया, आपने कौन सी बुक रीड करी, आप बता ही नहीं पा रहे। ट्रू इन्फॉर्मेशन लिखो, ऐसा झूठ नहीं लिखना, क्योंकि इंटरव्यूअर के लिए ही सोर्स जो है आपका रिज्यूम ही होता है। ठीक है ना। तो वहीं से निकाल के क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज लाइक सोशल सर्विस, वॉलंटियरिंग एटसेट्रा। जैसे एग्जांपल के लिए आप सभी हो, आप सभी स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। आप सक्षम रोजगार सोसाइटी से जुड़े हो, अभी आप और जुड़े रहोगे तो आप सक्षम रोजगार सोसाइटी से वॉलंटियर बन सकते हो हमारे यहाँ। हमारे सक्षम रोजगार सोसाइटी के प्रोग्राम होते हैं, जॉब फेयर्स होते हैं, आप वहाँ पे आओ, एज ए कोऑर्डिनेटर काम करो। ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ें आपके रिज्यूम को और इम्पोर्टेंट बना देंगी, कि ये देखो नॉर्मल चीजें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ में सोशल सर्विस भी कर रहे हैं। आप लिख सकते हो सक्षम रोजगार सोसाइटी में मैंने वॉलंटियरशिप करी। ठीक है ना। सक्षम रोजगार सोसाइटी में मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मैं इवेंट में गया, तो आप ये चीजें मेंशन कर सकते हो, जिससे क्या पता लगेगा उनको कि आपकी सोशल लाइफ भी तो है, आप सोशली कितना एक्टिव दिखते हो, उससे भी आपकी इंपॉर्टेंस बन जाती है। ठीक है ना। लैंग्वेजेस यू कैन रीड राइट एंड स्पीक। एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश लिखते हैं लोग मैक्सिमम, कि हमें इंग्लिश लिखनी आती है, पढ़नी आती है, बोलनी आती है। अगर आपको फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना।
उसके बाद आपका रहा एनी अदर इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज नॉन विद प्रोफिशिएंसी लेवल स्पीक रीड एंड राइट, जैसा मैंने बताया फ्रेंच जर्मन कोई सी भी लैंग्वेज आप लिख सकते हो। लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नॉर्मली नोट टू बी गिवन बट कैन बी आस्क इन इंटरव्यू टू बी रेडी फॉर दैट। इंटरव्यू कई बार पूछ लेता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो हमेशा याद रखो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है आपको। स्ट्रेंथ में हमेशा स्ट्रेंथ बताओ और वीकनेस में भी अपनी स्ट्रेंथ बताओ, ठीक है ना। अब कई लोग होते हैं आपकी वीकनेस क्या है, मैं लेट आता हूँ ऑफिस, मेरी वीकनेस है। ये क्या वीकनेस है, इसको पहले ही राउंड में आपको फेल कर देगा वो। आपकी वीकनेस में आपकी स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। एग्जाम्पल, वो बोल देगा आपकी वीकनेस क्या है, आप बोल दो सर मैं जब एक काम करता हूँ ना, तो अगर मुझे कोई दूसरा काम दे देता है उसी टाइम पे, तो मेरा दिमाग नहीं लगता उसके अंदर जब तक मैं पहले काम को कंप्लीट ना कर दूं। ये आपने देखो वीकनेस बोली, वीकनेस में बोली, लेकिन ये है आपकी स्ट्रेंथ कि एक आपको आप पकड़ते हो तो आप उस काम को कंप्लीट करते हो, ये है आपकी स्ट्रेंथ। दूसरा आप बोल सकते हो वीकनेस के अंदर कि सर मेरी वीकनेस ये है कि जब भी मुझे कोई काम करने के लिए बोलता है ना तो मैं मना नहीं कर पाता, मैं काम कर देता हूँ, ये मेरी वीकनेस है। तो ये क्या है, वीकनेस दिखा रहे हो लेकिन है आपकी स्ट्रेंथ, ये आपके फायदे की चीज है। तो इस तरीके से आपको अपनी वीकनेस को शो करना है जो कि आपकी स्ट्रेंथ को ही शो करे, ठीक है ना। वीकनेस में कुछ गलत मत बता देना कि मैं लेट आता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, इससे क्या होगा आपको निकाल देंगे वो। रिज्यूम राइटिंग का सेगमेंट 4 देखते हैं, टाइम हो गया है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हैं। रेफरेंसेस गिव इफ आस्क फॉर ऑन और डिमांड। जैसे आप कई बार होगा, आप देखो बड़ी बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनीज में रेफरेंस लगते हैं कि इसके रेफरेंस से मैं आया हूँ, उसके रेफरेंस से मैं आया हूँ। तो जब रेफरेंस लगते हैं तो रेफरेंस को मेंशन कर देना चाहिए। जैसे हमारी हमारी सक्षम रोजगार सोसाइटी की प्रेसिडेंट मैम है। अब कोई हैंडीकैप था, या मुझे सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट कि वो हैंडीकैप थे या फिर कुछ भी थे, तो उनको कहीं जॉब देनी थी। तो जब वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो ज्योतिका मैम ने, जो इनकी प्रेसिडेंट है सक्षम रोजगार सोसाइटी के, उन्होंने पर्सनली अपना रेफरेंस लगाया था। उस रिज्यूम के नीचे उन्होंने अपना पर्सनल रेफरेंस लगाया था कि मैंने इनको देखा है, मैंने इनको पढ़ाया है, इनकी यही चीजें हैं, वो चीजें हैं। तो उससे क्या होता है, उस लड़के का सिलेक्शन जल्दी हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि प्रेसिडेंट का रेफरेंस लग रहा है। तो रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अगर आप रेफरेंस से आते हो, ठीक है ना। तो वो भी चीजें हो जाती है। इन्फॉर्म द पर्सन ऑल्सो, ये वो पॉइंट है। रेफरेंस डेजिग्नेशन कॉन्टेक्ट डिटेल्स योर रिलेशन इफ एनी, सच में लिखा हो ना डेजिग्नेशन, जैसे वो जो ज्योतिका मैम है वो सक्षम रोजगार सोसाइटी की प्रेसिडेंट है, तो उसमें लिखा हुआ था कि फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ सक्षम रोजगार सोसाइटी मिस ज्योतिका कालरा। तो इस तरीके से जो रेफरेंस है, आप कोई और भी रेफरेंस लगा सकते हो किसी बड़े इंसान का, तो वो रेफरेंस भी कई बार इंपॉर्टेंट रोल निभा देता है सिक्योरिटी पे, ठीक है ना। उसके बाद आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जेंडर डिक्लेरेशन, पासपोर्ट डिटेल है तो आप मेंशन कर सकते हो। नेम एंड सिग्नेचर ऑन द राइट, आप अपना नाम और साइन आप लिख सकते हो रिज्यूम के अंदर। प्लेस एंड डेट ऑन लेफ्ट, अपने प्लेस, आप कहाँ से रिज्यूम बना रहे हो, कहाँ पे रहते हो, डेट मेंशन कर दो। डेट मेंशन करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप एक्टिव हो, ठीक है ना। उसके बाद बात करते, कैरी 3 कॉपीज इन सिंपल फोल्डर, डू नॉट मेक फोटो कॉपीज। कैरी 3 कॉपीज इन द सिंपल फोल्डर, डू नॉट मेक फोटो कॉपीज। मतलब समझ आ रहा है इसका क्या होता है, आपको अपने रिज्यूम के 3 प्रिंट आउट करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रिंट निकाला और उस प्रिंट से फोटोकॉपी कर दिया, उससे प्रिंट की क्वालिटी खराब होती है और रिज्यूम सही से प्रिंट नहीं होता। तो 3 कॉपी हमेशा अपने साथ रखो रिज्यूम में जब भी जाओ, ठीक है ना। भैया यूज नॉर्मल फोन यूज नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल विच आर प्रैक्टिस एंड फॉन्ट साइज शुड बी 11 और 10 12 साइज। तो फॉन्ट जो होना चाहिए वो सेम फॉन्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कुछ आप इटैलिक में लिख रहे हो, कुछ आप टाइम्स इन रोमस में लिख रहे हो, कुछ एप्टोस में लिख रहे हो, मतलब कोई भी डिफरेंट टेक्स्ट रूल नहीं होना चाहिए। आप एक जो लिख रहे हो इट शुड बी प्रोफेशनल, और पूरा रिज्यूम का जो टेक्स्ट है वो एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। टाइटल इज बोल्ड इन द सेम फॉन्ट साइज। रिव्यू एंड प्रूफ रीड बिफोर सबमिटिंग एंड प्रिंटिंग, जब भी आप प्रिंट के लिए जाते हो, मैंने पहले बताया प्रूफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट आता है, वो ना आ पाए। मैं बस डाउट ले रहा हूँ, आप डाउट नोट कर लो, लास्ट में लेंगे बस, थोड़ी देर में क्लास क्लोज होने वाली है, फिर आप सबके डाउट लूंगा, आप नोट कर लीजिए प्लीज। सेगमेंट नंबर 3 और 4, स्ट्रेंथ। अभी मैंने आपको बताई दिया इसके बारे में, देखो आप देखो सामने मेंशन कैसे किया है, बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, देखो स्ट्रेंथ को मैंने क्या किया है, अंडर वो क्या है, अंडरलाइन कर रखा है। इससे तो कितना प्यारा लग रहा है, हेडिंग, हेडिंग अलग ही दिख रहा है कि यहाँ हेडिंग है स्ट्रेंथ, और हेडिंग का पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल जो बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको मेंशन करनी चाहिए। दूसरा देखो पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल देखो अंडरलाइन कर रखा है। उसके बाद बुलेट्स पॉइंट, उसके बाद देखो आराम से मतलब वो लिखी हुई डिटेल है कि फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, लैंग्वेज नोन,
डेट प्लेस और लास्ट में नाम लिख दोगे आप, ठीक है। जिस दिन जाओगे उस दिन की डेट भी मेंशन कर देना आप। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। ये आप सबके सामने एक डमी रिज्यूम दिख रहा है आप लोगों को, देखो कितना क्लियर है रिज्यूम। सेम फॉन्ट में बना हुआ है, सेम फोन में बना हुआ है, क्लियर है, बॉक्सेस यूज हो रखे हैं, फोटो लगी हुई है, सब देखो अंडरलाइन हो रखे हैं, जो भी हेडिंग है वो बोल्ड हो रखे हैं, सब बुलेट पॉइंट्स के अंदर यूज करे हुए हैं, आप सब देख सकते हो। और देखो सबसे अच्छी बात, रिज्यूम के बैकग्राउंड में देखो एक आउटलाइन बनी हुई है, जिससे वो रिज्यूम कितना अलग सा लग रहा है। लोग आउटलाइन नहीं बनाते, आउटलाइन बनाना इज इंपॉर्टेंट, उससे रिज्यूम एक बॉक्स में अच्छा लगता है। और 2 पेजों का रिज्यूम है, मैक्सिमम 2 पेजों का ही बनाना है आपको, 1 पेज का भी बन जाता है, आप 2 पेज बना सकते हो मैक्सिमम, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक ही जॉब की मैंने फोटो लगा रखी है, एक देखो जॉब की वैकेंसी अकाउंटेंट की, ठीक है ना। अब देखो इसमें मुझे कैसे डिसाइड करना है कि मुझे रिज्यूम में लिखना क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं विक्की हूँ और मुझे अकाउंट्स की जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है। अब मेरे को जो सॉफ्टवेयर आता है, तो मेरे को टैली भी आता है, बिजी भी आता है, क्विक बुक्स भी आता है, सैप भी आता है, ये सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है, ये सब मुझे आते हैं। अब मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आप सब देखो सामने जॉब के सामने। अब आप देखेंगे सबसे लास्ट में आ जाओ, सबसे लास्ट वाली जो लाइन आ रही है देखो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ टैली एंड बिजी। आप देखो आप सब देख सकते हो, उसमें ये पूछ रहा है कि टैली और बिजी, मतलब उसने क्विक बुक्स के बारे में नहीं पूछा, सैप के बारे में नहीं पूछा, लेकिन वो दोनों सॉफ्टवेयर मुझे आते हैं। तो मैं क्या करूंगा अपने रिज्यूम के अंदर उन दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में कम मेंशन करूंगा, लेकिन टैली और बिजी के बारे में ज्यादा मेंशन करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए कीवर्ड है, और मेरा एम्प्लॉयर मुझसे टैली और बिजी के बारे में जानना चाहता है, ना कि सैप के बारे में, ना ही क्विक बुक्स के बारे में। इन्फॉर्मेशन बताने की मुझे आता है, बट आपको मैक्सिमम चीजें जो है यूज करनी है रिज्यूम के अंदर, इट शुड बी रिलेटेड टू टैली और बिजी, ठीक है ना। और बाकी देखो फिर आगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉर्पोरेशन, जो ये प्रिपरेशन, आईटीआर प्रिपरेशन, ये सब चीजें हैं, ये सब कीवर्ड्स हैं। आपको ये सब मेंशन कर सकते हो कि मुझे ये सब चीजें आती हैं, ये सब चीजें मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उससे क्या होगा, आपका रिज्यूम क्या हो जाएगा, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिज्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेम वही रिज्यूम है आपका जो दिखाया मैंने पहले, सेकंड पेज और ये थर्ड पेज। बस इसी के साथ आज की आपकी क्लास खत्म है। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क। हाँ विक्की जी, कुछ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन चैट बॉक्स में है, वो एक बार देख लीजिए और रीड कर लीजिए। और एक जो सोनू है वो बहुत हाथ रेस कर रहे हैं, जो एक बार उनसे पूछ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन है। बाकी तो और पहले बच्चों मैं को। सर एक चैट बॉक्स और तो पहले मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ। अनिकेत का तो मैंने क्लियर कर दिया था, साक्षी का भी क्लियर हो गया था। आई थिंक किसी का रिज्यूम, किसी का लेटेस्ट क्वेरी तो नहीं दिख रही, तो हाँ सोनू जो भी है अब आप पूछ लीजिए, पूछिए बताइए। सर जैसे मान के चलिए कि कोई एक आदमी है, वो किसी भी जॉब के लिए जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए आईटी सेक्टर में जा रहा है, ठीक है। और उसी के फैमिली मेंबर हैं जो कि आईटी फील्ड में ही काम करते हैं, तो सर क्या उसको मेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल मेंशन करना चाहिए, वो आपका ओके तो सर, रेफरेंस यही लग गया ना, डाउट था। आपके तो मम्मी का रेफरेंस है, पापा का वो रेफरेंस लग गया। एग्जाम्पल लिखो आप, आपके माता पिता हैं, मतलब आपके जो रिलेटिव है वो काम कर रहे हैं। अगर आपके रिलेटिव एग्जाम्पल के आप मान लो वो हम्म 8 साल से काम कर रहे हैं उसी कंपनी में, तो ऑटोमेटिक सी बात है, इंसान हम्म हमेशा उसके रेफरेंस और उसके रिलेटिव से जज करता है कि उसके रिलेटिव 8-9 साल हम्म। से काम कर रहे हैं और उन्होंने काम नहीं छोड़ा। तो उससे क्या होगा, एक आपको अच्छा रेफरेंस मिलेगा, जब उसकी रिलेटिव ऐसा है तो ये भी ऐसा होगा, ठीक है ना। जो जो रेफर करता है ना उससे हमें बेनिफिट मिलता है, तो आप जरूर मेंशन और करो अगर जब आपको। और अगर सर फैमिली मेंबर अदर अदर फील्ड से हो, फिर मेंशन करना चाहिए? क्या चीज? अगर फैमिली मैन, फैमिली, अगर जैसे उसके जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, वो अगर कोई अलग अलग फील्ड से हो, जैसे कोई मान के चलिए कि आईटी से है, कोई मेडिकल से है, या कोई अलग अलग डिपार्टमेंट से है, तो उसको मेंशन करना चाहिए आई थिंक। अगर वो आपके जॉब के रिलेटेड में इशू, जॉब के रिलेटेड नहीं है तो आपको मेंशन नहीं करनी, जो कोई जरूरत मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपके जब फील्ड से रिलेटेड ही ओके नहीं है। भैया, ओके भैया, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? विक्की जी, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को एक बार बोल दीजिए कि सभी अपना जो है कैमरा ऑन कर ले, ताकि हम फोटो अटेंड क्लिक कर सके। आप सभी एक बार अपना कैमरा ऑन कर लेंगे।
सर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, नेटवर्क की इशू आ रहा है। हेलो। विक्की जी एक आप भी क्लिक कर दीजिए जरा कंप्यूटर से। हाँ ठीक है, आप लोग सभी लोग अपना जो भी है कैमरा बंद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे। सर हेलो। हाँ, हाँ पूछिए बोलिए। पूछिए। सर मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ तो मैं आ नहीं पाया उसमें। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने अटेंडेंस दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम तो आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और थैंक यू सो मच मिस्टर विक्की फॉर सच अ ट्रूली इंस्पायरिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास के लिए। आपने रिज्यूमे के बारे में बहुत ही डेप्थ और बहुत ही अच्छे से बताया सभी को। और मुझे तो लगता है कि ये जो आपने जिस तरीके से समझाया, जो जो डाउट उनके मन में था वो आपने अपने टॉपिक में ही ले रखे थे और बाकी चीज़ों के लिए। तो मैं थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस्टर विक्की। थैंक यू ओम जी। तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर लीडिंग मैम मिस ज्योतिका कल्ला to share his concluding remark and guidance with us. Please, ma'am, over to you, ma'am. हाँ, थैंक यू ओम जी। सॉरी आज मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। विक्की आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास ली। आपकी अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट इतनी अच्छी थी, तो उसी वजह से जो क्लास, जो आप कह रहे थे कि आपका रिज्यूम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मैं भी जब सुन रही थी तो आपने बोला कि आपने ग्रेजुएशन किस साल से किस साल तक करी, तो मैं खुद कोरिलेट कर रही थी कि मेरे ऑफिस में भी जैसे लॉयर्स आते हैं तो एलएलबी किस ईयर में खत्म करी वो लिख देते हैं, ये लिखते ही नहीं कि एलएलबी स्टार्ट कब की थी। तो पता चलता कि 5 साल आपने एलएलबी करने में बिता दिए। आपने लिखा कि जैसे 12वीं क्लास का आपको ईयर लिखना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैं उसी को मतलब आपका इतना बढ़िया सेशन था कि मैं हर स्टेप को मैं अपनी लाइफ से और अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कोरिलेट कर रही थी। कि आपने लिख दिया कि 2024 में लॉ करी है, और ये लिखा ही नहीं कि 12वीं आपने कौन सी क्लास में करी है, कौन से ईयर में की है। तो अगर आपने 12वीं 2014 में की है तो मतलब आपकी उम्र तो 5 साल बड़ी है जो नॉर्मल एक लॉयर से होता है, या आपने बीच का 5 साल का गैप वेस्ट किया है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और मतलब इतना प्रैक्टिकल था। सभी बच्चों से मेरी ये कहना है, जैसे विक्की ने बताया कि पहला इंप्रेशन तो आपका रिज्यूमे ही होता है। तो इसलिए आज इस सेशन को आप बहुत ध्यान से सुनिए, यूट्यूब पे बार बार सुनिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कल की जो हमारी क्लास है वो इंटरव्यू होगा आप सबका। हम इस ऑनलाइन क्लास में अलग अलग रूम्स क्रिएट करेंगे, और उस अलग अलग रूम्स में 4 अलग अलग सीनियर लोग और एक हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं सब उनको असिस्ट करते हुए, हर रूम में दो दो लोग होंगे जो इंटरव्यू लेंगे आपका। और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हम आपको शेयर कर देंगे इस ग्रुप के ऊपर, सो दैट आप तैयारी करें। हम चाहते हैं कि आप बेहतर परफॉर्म करें। और ये जो इंटरव्यू है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो एक कॉल सेंटर की नौकरी के लिए इंटरव्यू, ये नहीं कि आपका इंटरव्यू हो रहा है। आपने ये मान के चलना है कि एक कॉल सेंटर की नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो जिस तरह के आपका सवाल पूछे जाएंगे आपने यही जवाब देना है कि आप एक कॉल सेंटर की नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। जब भी कोई मॉक इंटरव्यू होता है, जैसे कल का आपका मॉक इंटरव्यू, इसको बोल रहे हैं मॉक, मतलब ये नकली इंटरव्यू है। तो वो नकली इंटरव्यू या मॉक इंटरव्यू हमेशा कुछ अलग होगा। आपकी लाइफ का इंटरव्यू नहीं है, पर आप ऐसा अज्यूम करेंगे कि आप कॉल सेंटर की नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उसकी तैयारी आप कीजिए, आपको हम क्वेश्चन शेयर करेंगे, आप उसकी तैयारी कीजिए। और जैसा आज विक्की ने बताया, तो आप कोशिश करके अगर हो सके तो अपना एक रिज्यूमे भी उसी तरह का बना लीजिए आज की क्लास के बेसिस पे। कॉल सेंटर की इंटरव्यू के लिए आपका रिज्यूमे कैसा हो तो वैसा भी बना लीजिए। कल सब लोग ज्वाइन करेंगे हम इंटरव्यू, वही 9 बजे। आप 9 बजे से 10 मिनट पहले सब ज्वाइन करें, ताकि रूम्स में आप लोगों को शिफ्ट करेंगे, फिर रूम्स में आपके इंटरव्यू होंगे, फिर वापस आप कॉमन रूम में आएंगे। तो टाइमली ज्वाइन करें। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारा सक्षम रोजगार सोसाइटी का यूट्यूब चैनल, उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप सबके, मैंने शुरू में भी बोला था, आप अपने मन में करिए कि मैंने 2 लोगों को बोलना है। अपने घर में ही आपके 2 मोबाइल फोन होंगे, उनको उठाइए और सक्षम रोजगार सोसाइटी पे आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उस फोन से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियोस को सुनिए। सो कल मिलते हैं
हम आप सबके मॉक इंटरव्यू के साथ। ओवर टू यू ओम जी। ओम जी, यू आर ऑल्सो कंडक्टिंग द क्लास वेरी वेल। यस मैम, अनिकेत, थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम। तालियां किसके लिए बजा रहे हो? मेरे लिए। वेरी गुड। थैंक यू सो Yes, मच ma'am. मैम फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। थैंक यू अनिकेत। Finally, I request Thank you, Mr. ma'am. Hello. Finally, I request Miss Radha to present the vote of thanks. अंकुश, अंकुश। Sorry. अ, Finally, I हाँ, request Ankush to present the vote of thanks for today's session. Over to you, Ankush. Thank you, Omji. Good evening, dear friends. I am Ankush Kumar on behalf of Saksham Rozgar Society. Feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful, Mr. Vicky Gautam, for taking a wonderful session on how to make a CV. We look forward to make more such classes. A big thanks to dear students for your active participation. I wish to acknowledge and thank all the senior of Saksham Bharati and Saksham Rozgar Society who graced today's class. Finally, thanks to Mr. Jyotika Kalra ma'am for having taken so much interest in the training session. Wishing you all a very good night. good night Thank you, everyone. Ankush. Good night. Once again, thank you everyone for joining us. Have a great night and good learning with Saksham Rozgar Society. Good night, everyone. Good night, sir. Good night, everyone. Good night. Good night.